Now, previous video we have discussed about the physical property of metal and non-metal. So today we will start the chemical property of metal. So the first chemical property, reaction with oxygen. Reaction with the oxygen means how metal react with oxygen, or simply what happened to a metal when it burned in air. Reaction with the oxygen means कि what happened to a metal when it burnt in air, means जब किसी भी मेटल को एयर में जलाते हैं तो उसका क्या होता है. तो फर्स्ट विल राइट अ जर्नल इक्वेशन, देन विल डिस्कस इट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ मेटल, ये कोई मेटल है प्लस ऑक्सीजन और एयर. सो इट सिंपली कन्वर्ट इनटू मेटल ऑक्साइड. It convert into metal oxide. Clear? So what happened to a metal in air? Ki when any metal is burnt in air, it simply change into metal oxide. And in chapter number 2 we have discussed that metal oxide are basic in nature. Metal oxide are basic in nature. So this is your reaction. For example, if we take a copper, Cu plus O2. This is a copper burnt in air, it will become CuO, copper oxide. So we'll balance it. So here comes out to be 2. Here comes out to be 2. So what happen with metal in air? तो जब किसी मेटल को एयर में बर्न करता है, इट सिंपली चेंज इनटू मेटल ऑक्साइड. सिंपली इफ यू टेक द एग्जांपल ऑफ सोडियम, वी विल टेक एग्जांपल Na plus O2, so it will change into Na2O. Clear? It changes Na2. Here comes out to be 2, here comes out to be 4, and this. So this is your balanced chemical equation. The main conclusion is that whenever a metal is burnt in air, it simply change into metal oxide. But we have discussed in the previous chapter कि metal oxide are basic in nature. But there is a exception is there कि some of the metal oxide we will discuss that कि few metal oxide, 1 and 2 metal oxide which shows both the behavior, means they behave as well as acidic as well as basic. What are these? The aluminium oxide, Al2O3, and zinc oxide. These are the 2 metal oxides which shows both behavior, which shows both the behavior. What are the behavior? Means they behave like a base as well as a acid. So what is the meaning of this? कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड है और जो जिंक ऑक्साइड है, दोनों तरह के बिहेवियर शो करता है. दोनों तरह मतलब क्या कि ये कभी मेटल ऑक्साइड जो बना है वो कभी एसिड की तरह बिहेव करता है और कभी किसकी तरह बिहेव करता है, बेस की तरह बिहेव करता है. तो यहाँ पे एक नया क्वेश्चन आगा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड. कि व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड? कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड आर दोज मेटल ऑक्साइड. एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो मेटल ऑक्साइड है जो दोनों तरह बिहेव करती हैं, एसिडिक भी और कैसे, बेसिक भी. व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड? एम्फोटेरिक ऑक्साइड आर दोज ऑक्साइड व्हिच बिहेव बोथ acidic as well as basic is called amphoteric oxide. In next we will discuss their reaction with both acid as well as with the base. So now after that we have seen that what are the reaction of metal oxide with base and acid. So first we will take the example of aluminium oxide. Clear? So now we will take the example of aluminium oxide. So first we take the aluminium oxide, so Al2O3. So this is a metal oxide, means aluminium oxide is a metal oxide, and this is amphoteric oxide which behave both as well as acidic as well as basic. How it behave like acidic or as a basic? मतलब ये एसिड की तरह और बेस की तरह बिहेव कैसे करता है? फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, यहाँ पे क्या डाल दिया, HCl डाल दिया. अब जो HCl है वो क्या है, एसिडिक इन नेचर है. अब जब इसको हम HCl के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ये एसिड है, तो एट दैट टाइम इट बिहेव लाइक अ बेस. मींस जब किसी भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड को आप एसिड से रिएक्ट करवाओगे तो बेस की तरह बिहेव करेगा, और जब बेस से रिएक्ट कराएंगे तो किसकी तरह बिहेव करेगा, एसिड की तरह बिहेव करेगा. तो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड इसके अंदर रिएक्शन करा दी, किसके साथ, HCl के साथ रिएक्शन करा दी. तो यहाँ पे क्या मेटल ऑक्साइड के साथ HCl की रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, हम यहाँ पे क्या देखते हैं, बनेगा AlCl3 प्लस H2O. तो यहाँ पे क्या होगा कि जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड था आपका, उसने किसकी तरह बिहेव किया, बेस की तरह बिहेव किया. सिमिलरली अगर मैं लेता हूँ, यहाँ पे लेता हूँ मैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 प्लस यहाँ पे ले लिया NaOH. तो अब यहाँ पे क्या है कि जो NaOH है वो क्या एक बेस है. जो NaOH यहाँ पे क्या है, बेस है. तो NaOH के साथ क्या होगा कि अगर ये NaOH एक बेस है और ये आपका मेटल ऑक्साइड है, वैसे हम कहते हैं मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसे हैं जो एसिड की तरह बिहेव करते हैं और बेस की तरह बिहेव करते हैं. तो हमने क्या देखा कि अब यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड है और ये क्या बेस है, क्या है ये बेस. तो अगर ये बेस है तो इस टाइम जो आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो बिहेव करेगा लाइक अ एसिड. तो यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा है कि एसिड प्लस बेस, ये बेस था तो ये क्या था, एसिड. तो एसिड प्लस बेस और बेस प्लस एसिड की रिएक्शन कहते हैं पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन.
तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा मेटल का सोल्ट। क्या बनेगा यहाँ पे, मेटल सोल्ट प्लस वाटर। तो व्हाट इज द मेटल सोल्ट हियर, तो हियर द मेटल सोल्ट फॉर्म बी NaLO2 मींस दिस इज द मेटल सोल्ट प्लस वाटर। सो हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने यहाँ पे देखा बेटा कि जो मेटल ऑक्साइड है, कौन से मेटल ऑक्साइड, दीज आर टू मेटल ऑक्साइड, जिंक मेटल का ऑक्साइड और एल्यूमिनियम मेटल का ऑक्साइड जो है ये दोनों तरह बिहेव करते हैं, एसिड की तरह बिहेव करते हैं और बेस की तरह बिहेव करते हैं। तो इन मेटल ऑक्साइड को हम क्या बोलेंगे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलेंगे। और ये इनकी रिएक्शन है, दीज आर द जनरल रिएक्शन, यू हैव टू बैलेंस इट बाय योर ओन। नेक्स्ट वी विल डिस्कस कि व्हाट हैपन टू द मेटल ऑक्साइड व्हेन दे डिसॉल्व इन वाटर, कि जो मेटल के ऑक्साइड थे उनका वाटर में क्या होगा। जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि यहाँ पे कुछ ऑक्साइड बने हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वी विल टेक द एग्जांपल ऑफ दैट Na+O2 दैट गिव अस Na2O। तो दिस इज अ मेटल ऑक्साइड सो व्हिच इज बेसिक इन नेचर। अगर हम इसको वाटर में डालेंगे मींस Na2O प्लस वाटर, तो व्हाट हैपन टू दैट कि दिस metal oxide dissolve in water, this metal oxide is dissolved in water from NaOH मींस मैक्सिमम जो आपके मेटल ऑक्साइड है वो इनसोल्युबल है वाटर के अंदर, कि मैक्सिमम जो आपके मेटल ऑक्साइड होते हैं वो पानी में घुलते नहीं हैं। लेकिन कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड हैं जो पानी में घुलते हैं और पानी में घुलने के बाद वो क्या बनाते हैं, बेस बनाते हैं। और वी नो दैट इन प्रीवियस चैप्टर द वाटर सोल्युबल बेस इज नोन एज अल्केलाइन और अल्कली। तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि मोस्ट ऑफ metal oxide does not dissolve in water but few dissolve and which dissolve in water is known as alkaline because जो मेटल के ऑक्साइड है वो बेसिक इन नेचर है। तो मतलब बेस है और जो बेस पानी में घुल जाते हैं वो क्या बोलते हैं, अल्केलाइन या अल्कली कहते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ जो मेटल ऑक्साइड है वो आपके पानी में डिसोल्व नहीं होते, लेकिन जो कुछ होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, अल्केलाइन कहते हैं। लेकिन अगर हम आपके देखें कि जो सारी की सारी जो मेटल है क्या वो सेम रेट से रिएक्ट करती हैं एयर के साथ, कि इज द ऑल मेटल रिएक्ट विद सेम रेट इन एयर, द आंसर इज नो। The reactivity of metal depend on the position of the metal in the reactivity table. We have discussed in